السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے ڈی جی اسکلز پروگرام کا افتتاح کر دیا. اس پروگرام کا مقصد 10 لاکھ نوجوانوں کو آن لائن تربیت فراہم کرنا ہے. اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا فیچرز ہیں اس پر بات کریں گے پروگرام لائیو ایٹ 5 میں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں. تاہم حکومت کہہ رہی ہے کہ صارفین پر کم سے کم بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور محصولات قیمت میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. کوہاٹ میں میڈیکل طالبہ عاصمہ کا قتل. ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور ملزم کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ عمرہ ویزے پر وہ سعودی عرب فرار ہو گیا ہے. تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا اسود نوٹس لے رکھا ہے. 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے پولیس کو اس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے. اور آج ایک خاص رپورٹ پروگرام کے اندر شامل کریں گے. مرغی کے گوشت میں مضر صحت ادویات کے ذرات موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. بین الصوبائی رابطہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر تفصیلات کیا ہیں آپ سے شیئر کریں گے. حج انتظامات کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آج معاہدہ طے پایا ہے. اس پر دستخط ہوئے ہیں. کیا تفصیل ہے بات کریں گے آج. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست ہوئی. اس کے بعد تیسری پوزیشن کا پاکستان نے میچ کھیلا اور میچ اپنے نام کر لیا. اس کے تیسری پوزیشن پاکستان نے حاصل کی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جان لی. اس کے علاوہ ایک انتہائی افسوسناک خبر اس پر بھی بات کریں گے. میر ہزار خان بجرانی جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے وہ اور ان کی اہلیہ پراسرار طور پر ہلاک پائے گئے ہیں اپنے گھر میں. اس کی کیا تفصیلات ہیں اور پولیس اب تک کیا تفتیش کر چکی ہے اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے بڑھ کر. لیکن یہاں لیں گے ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیگر خبریں ان کو بھی بات کریں گے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو. خدا کرے. ایک اسلامی جمہوری مملکت. مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने IT की वजारत के अंडर प्रोग्राम DG स्किल्स का इफ्तिताह कर दिया है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि 10 लाख नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है CEO हैं एक इदारा इग्नाइट, यूसुफ हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने में ज्वाइन किया। आपका इदारा बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज वजीर आजम पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया है, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। जी, इसके सेलिएंट फीचर जैसा आपने बोला कि हम अगले तकरीबन 2.5 साल में 10 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए कुछ ऐसी स्किल्स में जिससे उनको जिसको हम मार्केट प्लेस कहते हैं ऑनलाइन, उस पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी जॉब्स मिल सके। ये इसका मकसद है और तकरीबन 3.5 महीने में इंशाल्लाह ये लॉन्च होगा और जो हमारा पहला बैच है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग किन किन सब्जेक्ट्स की होगी, खासतौर पर अगर हम IT के शोबे की बात करें? जी, तो हमने जायजा लिया, हमने देखा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं ऑनलाइन जिनकी दुनिया भर में जरूरत है। हमने इनको डिवाइड किया 2 एरियाज में, एक है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस और दूसरी है जिसको हम डिजी स्किल्स कह रहे हैं। सो कंप्यूटर साइंस हम बाद में लॉन्च करेंगे तकरीबन 6 महीने में, मगर इस वक्त जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो डिजी स्किल्स है और ये उस किस्म की स्किल्स हैं जिनमें डिजाइन शामिल है, ऑटोकैड वगैरह शामिल है, इसमें फ्रीलांसिंग शामिल है, राइटिंग और इसके अलावा जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इस किस्म की स्किल्स हैं जो कोई भी जो जज्बा रखता हो वो सीख सकता है। इवन कोई किसी ने मैट्रिक पास किया हो, SSC किया हो या वो प्रोफेशनल हो, वो इन चीजों को सीख सकते हैं। उनका बेशक IT से कोई डायरेक्ट कोई ताल्लुक ना भी हो, थोड़ा कंप्यूटर जानते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हो, वो ये सीख सकते हैं और फिर ऑनलाइन ही वो फ्रीलांसर्स रोजगार कमा सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं 20,000-30,000 रुपए के दरमियान। इस किस्म की हमने देखा है कि लोग जो मेहनत करते हैं वो कर सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ साहब, हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान अब भी ये काम कर रहे हैं जो बड़ी वेबसाइट्स पूरी दुनिया में काम करती हैं, रेंट अ कोडर हुआ, फ्रीलांसर हुआ, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इस किस्म के इंडिविजुअल्स को। तो जो पहले काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उनके हवाले से आप कुछ प्लान रखते हैं कि उनकी भी स्किल को एनहांस किया जाएगा इस प्रोग्राम से? जी बिल्कुल। तो हमारे प्रोग्राम के मकासद ये हैं कि एक तो नए लोगों को ट्रेन किया जाए और दूसरा जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो मैं पहले फेज में मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी डिजी स्किल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी ये डिजी स्किल्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, उनको हम बेहतर करें ताकि उनका पर आवर रेट जो अर्निंग का होता है वो ज्यादा हो और उनको ज्यादा काम मिले। ठीक। तो ये एग्जिस्टिंग लोगों को भी मदद देगा और जो नए इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी भी मदद करेगा। तो अंदाजन आप क्या बता पाएंगे हमें और हमारे नाजरीन को कि एक इस किस्म का फ्रीलांसर जो शख्स है जो कंटेंट राइटिंग करता है या दीगर स्किल्स के ऊपर काम करता है, वो कितने पैसे कमा सकता है इस इंटरनेट के ऊपर? देखिए, बात यह है कि अर्निंग जो है वो उस पर बहुत एक वाइड रेंज है। जस्ट लाइक आप कोई कारोबार खोलते हैं, कुछ कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं और कुछ जो है वो आसमान से बातें करते हैं, इसी तरह ये फ्रीलांसिंग भी है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, उनमें जज्बा है, वो सीखते हैं, वो फिर ज्यादा कमाते हैं। अभी दुनिया भर में हम देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जहाँ पे ट्रेनिंग आती है काफी जगह लोग छोड़ जाते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते, मगर जो कंप्लीट करने वो ऐसे लोग भी हैं जो 10, 20, 30 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग करके या डेटा साइंस की सॉल्यूशंस करके, जो कि बहुत हाई सॉर्ट आफ्टर स्किल्स है। ये स्किल्स हम इस वक्त नहीं पढ़ा रही है, 6 महीने के बाद इसका प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें मेरे सामने आसानी से कोई करे तो वो 10,000 से लेके लाख, 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकता है अगर उसका फॉर एग्जाम्पल डिजाइन बड़ी अच्छी हो या डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है तो वो हुनर अच्छी तरह सीखे
बेहतर से बेहतर हुए तो लोग काफी ज्यादा रेंज हो जाती है. अच्छा, तो इस एनरोलमेंट के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो इन स्किल्स को हासिल करे, तो आपका जो प्रोग्राम है, आप कह रहे हैं कि 3-3.5 महीने के बाद ये बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देगा, तो इसका क्या प्रोसीजर क्या होगा? रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा जो अप्लाई करेंगे, या कोई डिफरेंट एक तरीकाकार अपनाया जाएगा? देखिए, इस वक्त अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमने एक टेंथरी वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है digiskills.pk. ठीक है. DIGISKILLS.pk. ठीक है. digiskills.pk में अगर इस वक्त जाके कोई अपना ईमेल एड्रेस दे दे और अपना या अपना सेल फोन नंबर दे दे, तो जब प्रोग्राम लॉन्च होगा तो उनको ईमेल भेज दी जाएगी या SMS भेज दिया जाएगा कि लॉन्च हो गया. ठीक है. नाउ हम pretty much जो भी क्वालिफाई करेगा, जो मिनिमम एक लेवल होगा, अगर वो क्वालिफाई किया तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करेंगे. ठीक है. जो भी पहले आएगा उसको पहले दिया जाएगा. सो पहले हम साल में 3 साइकिल रन करेंगे और पहली साइकिल में शायद मैं हफली नहीं कह सकता, शायद 50,000 के लगभग लोग होंगे. दूसरी साइकिल में से बढ़ के वो 1.5 लाख हो जाएंगे. तीसरी साइकिल में बढ़ के 2.5 लाख हो जाएंगे. तो इस तरह हम इसको रैंप अप करेंगे. क्योंकि जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं कि किस किस्म का मॉड्यूल लोग सबसे अच्छी तरह उसको समझ रहे हैं. वो मॉड्यूल ज्यादा करो, कोई अच्छा नहीं है उसको निकाल दो. हम सीख रहे हैं कि किस किस्म की स्किल्स जो है उससे एक्चुअली लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं. तो हम भी साथ साथ, क्योंकि यूसुफ साहब इस वक्त जो मेजर शेयर है वो हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसके जो IT एक्सपर्ट्स हैं या जो इस हवाले से काम करते हैं वो लेकर जाते हैं. तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, जो कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो ज्यादा जिस पे काम मिल रहा है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, तो ये भी देखना होगा. देखिए, हमने जितनी सोर्सेज उनको स्टडी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मॉन्स्टर, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, हमने इनके एग्जेक्टिव्स को कॉल्स की है, इनसे बात की है कि पाकिस्तान में जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं उनसे हम मिले हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि भाई आप बताइए. हमने ये सारे सोर्सेज लेकर करंट हमारे जो 10 मॉड्यूल है वो आइडेंटिफाई किए. मगर बात ये है कि ये हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जब चेंज हुआ रैपिड है. आज जो है 6 महीने बाद नहीं है, साल बाद कुछ और आ गया. तो इस चीज पर हम कंटिन्यूस नजर रखेंगे कि क्या चीज एक्चुअली सेल हो रही है और अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहेंगे अपना प्रोग्राम. अच्छा, और आखिर में खवातीन के हवाले से, बच्चियों लड़कियों के हवाले से बात की गई कि वो बहुत एक्सेल कर रही हैं, ई-कॉमर्स की बात हो, IT की बात हो, तो उनके लिए तो ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी कि वो घर से कमा सकेंगी पैसे भी और स्किल सेट भी अपना इम्प्रूव कर लेंगी. 100% करेक्ट. एक तो हम देखते हैं, जैसे वजीर आजम साहब ने भी बताया कि हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल में ले लें, इंजीनियरिंग में देखें कि खवातीन जो है, लड़कियां जो है वो ज्यादा मेहनत कर रही है, वो टॉप पे आ रही है. तो इसी तरह ये खास तौर पे खवातीन के लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम है, क्योंकि अगर उनको कोई मसला दरपेश आ रहा है घर से निकलने का या ऑफिस में जाने का, अगर उनको इस किस्म के कोई मसले दरपेश आ रहे हैं तो वो घर पे बैठ के ये कर सकती है. ऊपर से वेबिनार के साथ पार्टनरशिप है, वो जो ये ट्रेनिंग्स करेंगे उनको ये मोबाइल बैंडविड्थ कम रेट पे देंगे. टीटीसीएल के साथ एक पार्टनरशिप है, वो घर पे जो आती है इंटरनेट वो को कम रेट पे देंगे. और अखुवत के साथ हमारी पार्टनरशिप है. अखुवत में बोला कि जो भी ट्रेनिंग आएगा, सक्सेसफुल करेगा, उसको ये 1 लाख रुपए का बगैर सूद के इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, 1 लाख रुपए का, ताकि वो लैपटॉप खरीद सकें, कंप्यूटर खरीद सकें, इंटरनेट जो 2-3 महीने लगते हैं इससे पहले तो आप अपनी अर्निंग शुरू करें. तो उस गैप को कवर करने के लिए वो आपको सूद के बगैर लोन देंगे 1 लाख रुपए. बिल्कुल. और हम ये भी देख रहे हैं यूसुफ साहब की पूरी दुनिया में जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं वो ज्यादा मोबाइल एप्स की डिजाइनिंग के हवाले से बन रहे हैं, चाहे वो iOS हो चाहे एंड्रॉइड हो. तो इस पर भी फोकस किया जाएगा कि इस मार्केट को भी हम कैप्चर करें. देखिए, जैसे मैंने तो बताया कि पहला जो ये डिजिटल स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये नॉन प्रोग्रामिंग स्किल्स है. 6 महीने बाद हम एक लेके इंशाल्लाह आएंगे, तकरीबन 6 महीने 8 महीने में, जो कि एक लेके आएंगे फॉर प्रोग्रामिंग. मगर स्टार्टअप जो है, हमारा जो इदारा इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड, हमारा कोर काम है कि हम स्टार्टअप्स को फंड करते हैं.
स्टार्टअप्स जो रोबोटिक्स के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी के, जिसको हम कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल वेव, हम ऑलरेडी इन स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं और हम पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेटर बना रहे हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स आते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। यूसुफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीईओ हैं, इदारा बनाया गया है इग्नाइट आईटी को प्रमोट करने के हवाले से, और वो हमसे बात कर रहे थे जो डीडी स्किल्स प्रोग्राम का आज इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। और इस शोबे के हवाले से आपको बताएं कि ज़बरदस्त काम हो रहा है पाकिस्तान में आईटी के हवाले से, और जो हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बड़ा शेयर होल्डर है इसमें, तो उसको बीट करने के लिए भी इस किस्म की जो स्किल सेट्स हैं इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो खुद से पैसा कमा सकें। और वेब के ऊपर बहुत से ऐसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पर आप ये स्किल्स हासिल करके पैसा कमा सकते हैं। तो इस हवाले से वो बता रहे थे अगले 3 महीनों में इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। और जो वेबसाइट बनाई गई है dgskills.pk, इस वेबसाइट पर आप लॉग इन करके आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इस स्किल सेट के हवाले से एनरोल भी कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और कल रात से इसका इतलाक हो गया है। पेट्रोल ₹2.98 फी लीटर, इसकी नई कीमत जो है वो हो गई है अब ₹84.51। अब इजाफा हुआ है हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.92 और इसकी नई कीमत हो गई है ₹95.83। मिट्टी का जो तेल है ₹5.94 महंगा हुआ है और इसकी नई कीमत ₹70.26 हो गई है। लाइट डीजल ₹5.93 महंगा हुआ है, ₹64.30 इसकी नई कीमत है। और बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, और लेकिन जिस रेशो से बढ़ी हैं उस रेशो से ये बढ़ाई नहीं गई कीमतें, और ये कहा गया है कि इसका पूरा का पूरा जो बोझ है वो सारिफीन के ऊपर नहीं डाला गया बल्कि महसूलात की मद में इसको कुछ हद तक एडजस्ट भी किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है मिनिस्ट्री की जानिब से कि भारत हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत है उससे मुकाबला अगर पाकिस्तान का किया जाए तो अभी भी कीमत कम है। इस पर बात करेंगे। अब्दुल बासित अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इन तमाम तर मामला पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये जो इजाफा है जिसकी वजह से हमें भी इजाफा करना पड़ा है, क्या इस हवाले से आप बता पाएंगे हमें? देखिए शेरदिल, जैसा कि हम बड़े अरसे से ये चीज देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें वर्ल्ड मार्केट में रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। इसकी बेसिक वजह तो वो ये है कि उन्होंने अपनी जो ओपेक कंट्रीज हैं और रशिया जो 2 मेन ऑयल प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन जो है कम कर दी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में ऑयल की जो कीमत है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो पाकिस्तान, क्योंकि हम ऑयल को इम्पोर्टर्स हैं, लार्ज क्वांटिटी हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि उसको हम वही पुरानी कीमत बरकरार रख सकें। हमें जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे खरीद के हम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मुल्क में, तो ये इजाफा किसी हद तक नागुज़ीर था। सही। और अच्छा, ये जो हमने पहले देखा था एक बड़ा ड्रॉप आया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, एक जबरदस्त कमी वाक़ई हुई थी और वो सारिफ तक भी पहुंचाई गई थी, अब ग्रेजुअली ये बढ़ता जा रहा है दोबारा से और इसका बोझ जो है सारिफीन के ऊपर भी अब मजबूरी है कि डाला जाए। तो किस तरह ये शिफ्ट कैसे आ रहा है पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से? जी, मैंने अर्ज किया पहले तो ये हुआ था कि जो कम हुई थी कीमत वो इसलिए कि अमेरिका ने बहुत लार्ज स्केल पे शेल ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी, जो एक टेक्नोलॉजी का नया एक फैसेट था जिसकी वजह से कि बेतहाशा ऑयल जो है वो अमेरिका से प्रोड्यूस हुआ और वो जब मार्केट में आया तो ग्लोबली ऑयल की कीमतें कम आनी शुरू कर दी, तो एक ग्लोबल ग्लट पैदा हो गया। क्योंकि हुआ ये कि जो प्रोड्यूसर थे मेन ओपेक है जैसे और रशिया, ये 2 मेन जो 10 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, ये तो अपनी उसी रफ्तार से प्रोड्यूस कर रहे थे और साथ वो जो अमेरिका ने जो एडिशनल जो शेल की प्रोडक्शन आई तो उसकी वजह से वो जो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और डिमांड कम थी, तो इसलिए बहुत ड्रास्टिक। अच्छा, ये तरीकाकार क्या होता है बासी साहब के जब पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, जिस तरह ये भी बताया जा रहा है कि भारत, बांग्लादेश और तुर्की में अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो ये किस तरह एडजस्ट किस तरह किया जाता है कि महसूलात की मद में फिक्स कर दिया जाए ताकि सारिफ को कम से कम बोझ बर्दाश्त करना पड़े?
देखिए, इसमें ज्यादातर तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी का बहुत हिस्सा होता है, क्योंकि इंपोर्ट आप कर रहे हैं वो तो आपने उसकी एक कीमत, फिक्स कीमत देनी है जो इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद फिर जब आपके मुल्क में आ जाता है तो फिर उसके पास मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट वसूल करती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे मुल्क में जो कीमत है बहुत कम है। जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, उसकी मिसाल लीजिए, या तुर्की हो गया, कई और ममालिक हैं जहाँ ये अभी भी बहुत हमारे मुकाबले में महंगा है। तो उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सा जो इसका बोझ है खुद संभाला हुआ है। और आपने अगर नोट किया हो तो ओगरा ने जो समरी पेश की थी गवर्नमेंट को पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस की, तो वो तकरीबन आधे से ज्यादा उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। यानी मार्केट और उसके हिसाब से जो बेस प्राइस थी उसमें तकरीबन 10 और 11 रुपए का केरोसिन और डीजल में इजाफा होना चाहिए था, जबकि इस वक्त सिर्फ तकरीबन 5 रुपए 5.94 एंड 5.93। तो ये फिर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं ये खुद से ही क्यों अपने रेट्स जो हैं बढ़ा देते हैं, किराए क्यों बढ़ा देते हैं? क्या इस पे कोई चेक नहीं है हुकूमत का? मैं समझता हूँ कि इस पे चेक होना चाहिए, क्योंकि जब कीमतें पेट्रोल की और मसनूआत की कम होती हैं तो उसके प्रोपोर्शनेटली कभी कीमत ये कम तो नहीं करते। Exactly. लेकिन जहाँ इसको एक प्रिटेक्स्ट बना के एक मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ किसी हद तक ये अनएथिकल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर खुद एक कौमी जज्बे के तहत लोगों को ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सेसिव प्रॉफिटेयरिंग है और इस पे गवर्नमेंट को भी गिरफ्त करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट, और हमें बता रहे थे कि पूरी दुनिया में ये जो कीमतें हैं ये बढ़ रही हैं। इससे पहले जब कीमतें कम हुई थी तो जब अमेरिका ने शेल गैस के हवाले से एक्सप्लोरेशन शुरू की थी तो उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त कमी वाक़ हुई थी इन कीमतों में, लेकिन अब दोबारा से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए इसकी कीमत भी अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आलमी मंडी में बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि ये जो इसकी कीमतें इसको बढ़ाया जाए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम खबरें हैं उन पर बात करेंगे। पाकिस्तानी ज़कात देने में और फलाही कामों में और अपने लोगों की मदद करने में किसी से कम नहीं। शायद हम वो मुल्क हैं कि जो शायद सबसे ज़्यादा ज़कात भी देते हैं और जो फलाही इदारे हैं इनकी हम मदद भी करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये ज़रूर देखिए कि जिस इदारे को आप पैसे दे रहे हैं कहीं वो गलत उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। क्या ये तो नहीं हो रहा कि वही जो पैसा आप दे रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या वो किसी न किसी किस्म की दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है? तो ज़रूर दीजिए, लेकिन ये आप पहले इस बात का आप पहले यू मस्ट बी श्योर कि आप जिस इदारे को पैसे दे रहे हैं वो पाकिस्तान की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए नहीं। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूं शहजाद रज़ा। कानून का ये सबसे बड़ा असूल नहीं है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
तो मैप को अगर आप पढ़े तो ये बिल्कुल उल्टा है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमेरिका के अभी और मुस्तकबिल में, आप क्या समझते हैं, क्या नौयत होगी? पाकिस्तान से वो पाकिस्तान की जो हैसियत है उसके मुताबिक ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के हवाले से न रखें, सिर्फ टेररिज्म के हवाले से न रखें। ये आइन की बालादस्ती हो और उसके मुताबिक लोगों की राय की कदर की। अगर टकराव होना होता तो हम ये काम न करते, हम वो टकराते। हमने ये जो रैली निकाली है इतनी बड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने करते हैं ना। अगर हमने टकराना होता, हमने नहीं टकराना था। हजारों का टकराव हम ये समझते हैं मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। ईमानी, जमीनी और नजरियाती सरहदों से जुड़े कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान की मंजिल एक है। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करेंगे। सूबाई वजीर सिंध मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया पुरस्कार तौर पर अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं और इस पर तफ्तीश का आगाज हो गया है और आला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी वहां पहुंच चुकी है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है और अभी तक ये बात सामने आ रही है कि गोलियां उनको लगी हैं दोनों को और वो अपने बेडरूम में मुर्दा पाए गए हैं। ताहम अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये खुदकुशी की कोशिश है या फिर ये किसी ने कत्ल किया है। ताहम इस हवाले से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, तमाम जो पहलू हैं उन पर तहकीकात की जा रही है। मीर हजार खान बजरानी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इस पर बात करेंगे। इम्तियाज चांडियो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या बता पाएंगे, क्या अब तक इस हवाले से पता चल सका है जो इब्तदाई तौर पर पुलिस ने तफ्तीश की है, तहकीक की है? जी, इस वक्त तक तफ्तीश और तहकीक दोनों जारी हैं। मीर हजार खान बजरानी को आपको मालूम होगा कि सिंध की इंतहाई अहम सियासी शख्सियत होने के साथ उनकी कबायली अपने ट्राइब में बड़ी हैसियत भी है और पीपल्स पार्टी के बड़े वफादार साथियों में ये शुमार हुआ करते हैं थे। आज जो बताया तकरीबन दोपहर में ये खबर आई कि मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया की अपने ही घर के अंदर से लाशें बरामद हुई हैं। उसके बाद जब हम पहुंचे हैं मौके पर, देखा है कि अंदर तो बड़ा कोहराम वाली सूरत हाल है। अभी भी उनकी जो डेड बॉडीज मुंतकिल की गई हैं जिना अस्पताल की तरफ ताकि पोस्टमार्टम हो, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको एक एक गोली उनके सर पर लगी हुई है। खातून जो फरिया रजाक रुकन सिंध असेंबली भी रही हैं, उनको एक सर में गोली लगी हुई है और मीर हजार खान बजरानी को भी एक गोली लगी हुई है, जबकि पुलिस जरा ये बता रहे हैं जो अफसान की 4 राउंड फायर करने की कोशिश की गई लेकिन वो गोलियां नहीं हो सकी फायर, वो मिस हुई हैं। उसके बाद ये डेड बॉडी नहीं, आज उनके मुलाजमीन जब कमरे में गए हैं, बड़ी देर हो गई थी, आज 11 बजे उनको मीर हजार खान को कहीं जाना भी था, तो वो ये तफ्तीश इस वक्त जारी है। लेकिन जब मुलाजमीन के मुताबिक जब वो गए हैं तो दोनों लाशें पड़ी हुई थी और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। इस तरीके की बड़ा पुरस्कार मौत आप कह सकते हैं, कत्ल हुआ है जिस पर इस वक्त सारी सिंध हुकूमत और उनके अहले खाना परेशान है। अच्छा, अहले खाना का क्या कहना है? क्या इस हवाले से कोई थ्रेट्स वगैरह भी थे इनको
माजी में रहे हैं? जी, बज़ाहिर कोई ऐसी थ्रेट्स भी नहीं है और अहम शख्सियत है, उनकी अपनी इतनी हैसियत है कि उसके पूरा कश्मीर कनकोट डिस्ट्रिक्ट जो है मीर हजार खान बेजारानी वहाँ से मुंतखब होते रहे हैं, तो ऐसी कोई बज़ाहिर कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है, जो पुलिस ने पहले शक जाहिर किया कि शायद किसी ने एक ने कत्ल किया हो, फिर उन्होंने खुदकशी कर ली हो। लेकिन ये तमाम जो इस वक्त मफरूजात चल रहे हैं और वज़ीर आला सिंध से लेकर उसकी फैमिली भी इस बात पर बात नहीं करना चाह रही। आगे पता चलेगा कि ये कत्ल है, खुदकशी है या क्या, लेकिन इस वक्त उनकी सूरत हाल। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आला ओहदेदारान हैं, जो हुकूमत सिंध है, वो इस हवाले से कुछ नहीं बता पा रही है अभी? जी बिल्कुल नहीं बता पा रहे, और तमाम वज़ीर आला सिंध अंदर गए थे, वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर दयाल वहाँ मौजूद थे, पुलिस के आला अफसरान मौजूद हैं, लेकिन तमाम अब जो हुकूमती अरकान हैं या हुकूमत सिंध है, वो किसी किस्म का कोई उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया है, स्टेटमेंट भी जारी नहीं किए कि आखिर उनकी सिंध काबीना के इतने बड़े अहम मेंबर का कत्ल या किस तरीके से हुआ है। उसके घर में अंदर से डेड बॉडीज मिली हैं, CCTV कैमरेज हैं, सारी चीजें उनके पास हैं, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक नतीजा निकलता है और इब्तदाई तौर बताया जा सकता है कि कत्ल है या खुदकशी है। अब तक जो हमें मालूम हुआ है वो यही है कि पुलिस इसको अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, जो बच्चे हैं दोनों के, मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया के, वो क्या पहुंच चुके हैं? उन्होंने कोई बात की है? जी, मीर हजार खान की जो पहली वाइफ है, उनमें से तो उनके बच्चे हैं और उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रह चुके हैं साबिक हुकूमत में, अभी भी अहम पोजीशन पे है। लेकिन जो फरिया रजाक से कोई औलाद नहीं है उनकी, और फरिया रजाक से उनकी शादी, दूसरी शादी हुई थी और उसके बाद उस खातून ने सियासत को तर्क कर दिया था और पर्सनल लाइफ जो उनकी थी वो अभी घर में ही गुजार। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज चांडियो, हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर, मीर हजार खान बजरानी, उनकी अहलिया फरिया रजाक को पुरस्कार तरीके से कत्ल किया गया है या फिर खुदकुशी की है, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, पुलिस सुराग लगा रही है। तमाम सूबाई हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, वो भी मौजूद हैं उनके घर पर, और सुहेल अनवर दयाल जो वज़ीर दाखिला सिंध है वो भी मौजूद हैं, और पुलिस हुकाम जो है वो तहकीकात कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ हज इंतजामात के हवाले से। मौजूदा हुकूमत ने जो हज इंतजामात माजी में किए हैं वो मिसाली हैं, और जितने भी हुजाज कराम हज करके वापस आए हैं वो बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं इन इंतजामात को, जो तमाम तर फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं उसके हवाले। और ये भी आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले जो साइनिंग सेरेमनी है, जो मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो भी जो है वो किया गया है, और जो इंतजामात हैं इस हवाले से क्या इसकी तफसील होगी, इस पर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह पहले इंतजामात किए जाते रहे हैं हज के मौके पर, उससे बेहतर इंतजामात करने का ऐलान जो वजारत मजहबी अमूर है वो कर चुकी है। और इससे पहले जो तमाम तर मामलात थे उनको भी देखा गया, जो रिहाइश गाहों का मामला है उसको भी देखा गया, जो वहाँ पर फैसिलिटीज खाने के हवाले से है, दीगर हैं, उनको भी भरपूर तरीके से देखा गया है। और हम ये देखते हैं कि जब हज के दौरान खुसूसी तौर पर इन तमाम तर इंतजामात को मॉनिटर भी किया जाता है आला सतह पर, ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत ना सामने आए, और अगर कोई शिकायत सामने आती है तो उसको फिर टेकअप भी किया जाता है और उसको भरपूर तरीके से देखा जाता है कि उसको किस तरह बेहतर किया जाए। हम आज मुआहदा साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज इंतजामात के हवाले से, इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एक इंकशाफ हुआ है बैनुल सूबाई राब्ता से मुतल्लिक जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसके इजलास के दौरान, कि मुर्गी के गोश्त में मुज़र सेहत अद्वियात के ज़र्रात मौजूद हैं। और आमतौर पर प्रोटोकॉल ये होता है कि जब स्लॉटर हाउस लाया जाता है या किसी ऐसी जगह पर लाया जाता है जहां पर उस जानवर को ज़िबा किया जाए, मुर्गियों को ज़िबा किया जाए, उससे 5 दिन पहले जो अद्वियात दी जाती हैं वो रोक दी जाती हैं और मज़ीद अद्वियात नहीं दी जाती। लेकिन ज़्यादा जल्दी बड़ी करने के लिए जानवर को और दीगर किस्म के उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स फिर उन मुर्गियों में शामिल होती हैं और वो फिर खाने के जरिए जो सारिफीन हैं वो उसको इनटेक करते हैं। तमाम ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है
اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے رجسٹرار ڈاکٹر علمدار حسین ملک نے ایک پریزنٹیشن بھی دی ہے، آگاہ بھی کیا ہے کہ جانوروں اور خاص طور پر مرغیوں کی جلد نشو و نما کے لیے اس قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد یہ ادویات استعمال نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی جگہوں پر یہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو مضر صحت ادویات ہیں ان کے ذرات، ان کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ جو ہے وہ ان مرغیوں میں موجود ضرور ہوتا ہے. اور یہ بات واضح طور پر سلاٹر ہاؤسز میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی دی جاتی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اور مارکیٹ میں لانے سے پہلے 5 دن قبل ان کی جو میڈیکیشن ان کو دی جاتی ہے وہ ختم کر دی جائے تاکہ کوئی مضر اثرات جو ہے مرغی میں شامل نہ ہو. تاہم کچھ جگہوں پر اس کو فالو نہیں کیا جاتا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف اتھارٹیز ہیں وہ اس پر ایکشن بھی لیتی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرتی ہیں، لیکن بہت سی اتھارٹیز ایسی ہیں جو اس حوالے سے قانون سازی بھی کر رہی ہیں. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. India refuses to implement the unanimous resolution of the UN Security Council. People of Indian-occupied Jammu and Kashmir still await implementation of numerous Security Council resolutions which promised them their inalienable right to self-determination. This is the most intense foreign military occupation in recent history. Top stars: Brandon McCullum, Shane Watson, Pat Cummins, Osman Khwaja, Shazad Khan, Yasser Shah, Dwayne Bravo, Brad Hoss, James Pattinson, Cameron White, Ben Carpenter, Adam Zumper, Adam Zodes, Jackson Bird, John Boker, Colin Monroe, Colin Ingram, Travis Head, competing hard, not letting it go. Big Bash League 2017 and 18, live on PTV Sport. पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत. इस जंगल में कोई भी इंसान सुबह की गलती से रास्ता भटक सकता है. हमलों के साथ साथ खतरात भी बढ़ रहे हैं. Guys, we have to take them.
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे क्रिकेट की। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुकाबला होना है ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ फाइनल में, और पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरे पोजीशन के लिए मैच अफगानिस्तान के साथ था, लेकिन मैच वो नहीं हुआ, अबैंडन हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने ग्रुप में चूंकि पहली पोजीशन हासिल की थी, इसलिए पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इस पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल गफ्फार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज से इनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, आपने में ज्वाइन किया। थोड़ी सी अंडर-19 की क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लेंगे। बैटिंग कॉन्टिन्यूसली हमारी कोलैप्स किया है, किस तरह देख रहे हैं? क्या कोई हम जबरदस्त कोच नहीं लगा सकते इस टीम के साथ, जिस तरह भारत ने राहुल द्रविड़ को लगाया है अपनी टीम के साथ? जी बिल्कुल शेर, शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अंडर-19 टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, इसका अगर आप मुआवजा करें तो मुझे तो बिल्कुल वो चीज याद आ रही है जो पाकिस्तान ने 2015 के वर्ल्ड कप या उससे पहले जो वनडे टीम की परफॉर्मेंस थी कि हम कंसिस्टेंट नहीं थे, हमारे पास बैटिंग के प्रॉब्लम थे, एक आध स्टार बॉलर था। बिल्कुल वैसी ही टीम नजर आई जिसमें शाहीन शाह अफरीदी एक आपके पास बॉलर थे जिनके ऊपर हमने रिलाई किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इस लिहाज से मायूस कन रही कि प्रेशर मैच में स्पेशली अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जिन्होंने हमें मुसलसल हराते हुए आ रहे हैं फिर गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उनके खिलाफ फिर इंडिया के खिलाफ जिस तरह से पार्ट लिया, अगर आप लोग आधी रात को जाके मैच देख रहे थे और मोटिवेट करना चाहते थे अपनी टीम को, लेकिन पहले 10 ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप होना, 2 क्लियर रनआउट मिस होना, इस इंडिकेट कि आपकी जो बेसिक क्रिकेट की है वो यहाँ पर दोबारा आपको उसने हर्ट किया। आपको प्लान करना पड़ता है अंडर-19 लेवल पे। 2 साल पहले 3 साल पहले इंडिया की आपने बात की, राहुल द्रविड़ वहाँ मौजूद थे। अच्छी बात यह है कि इंडिया की जो अंडर-19 और हम देख रहे हैं कि भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अंडर-19 पर, और अपना जो जबरदस्त प्लेयर माजी का रहा जिसको दी बॉल का खिताब दिया गया, वो इस टीम के साथ अटैच्ड है। बिल्कुल, देखिए मोटिवेशन, कल मैंने रहीर अब्बास साहब का इंटरव्यू किया था इस हवाले से, लेजेंड है वो खुद भी। उनका ये कहना था कि राहुल द्रविड़ की प्रेजेंस से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा प्लेयर जिसको देखकर किसी ने क्रिकेट शुरू की हो, एक इंस्पिरेशन हो, एक जेंटलमैन क्रिकेटर वो रहा, रिकॉर्ड तो चले आउटस्टैंडिंग था ही, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सोना एक क्रिकेटर का होता है, और जब वो आपको सिखा रहा हो तो आपकी अट्रैक्शन और आपकी डेडिकेशन ही कुछ और होती है। तो पाकिस्तान टीम के पास हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन से फिर जो है वो कोचेस लगाए या टीम के साथ वो काम करके गए, क्योंकि जो बड़े नाम हैं उनमें से अगर कोई आपके साथ अटैच नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लेवल ऑफ स्किल्स, लेवल ऑफ डेडिकेशन वो नहीं हो सकता जो कि एक बड़ी टीम। अच्छा, हमारा जो मसला रहा बल्लेबाजों का वो शॉट सिलेक्शन रही है। जिस तरह सेमीफाइनल में एक ही कॉर्डन पर यानी कि स्लिप और गली के दरमियान ही कैचेस निकाले हैं, तो ये तो टेम्परामेंट का इशू लगता है, ये कोई ज्यादा स्किल का प्रॉब्लम नहीं लगता। देखिए टेम्परामेंट का इशू भी है, और टू बी ऑनेस्ट शेरदिल इस टीम के सिलेक्शन पे भी एतराज उठे थे कि कुछ प्लेयर पहले ओवर एज करार देकर निकाले गए, उनको फिर लाया गया। तो क्या पहले हम गलत थे या बाद में हमने कोई गलत इकदाम उठाया? हमने टीम की क्या तश्कीलें नो की थी? हमारे जो कप्तान थे क्या उनको हमने इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह ग्रूम किया था? सबसे बड़ी बात शेरदिल ये होती है कि अंडर-19 लेवल पे जो क्रिकेटर्स होते हैं इन्हीं को बेसिकली आपने डोमेस्टिक खिलाना होता है। आपके तो सिवाय एक आध क्रिकेटर के किसी को डोमेस्टिक या पीएसएल के अलावा कहीं किधर ही नहीं दिया। तो इंडियन क्रिकेटर जो है वो राहुल द्रविड़ ने पूरा प्लान किया। बिल्कुल यही फर्क रहा उनकी टीम में और हमारी टीम में। बहुत शुक्रिया, वक्त थोड़ा है। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे, और बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम पर इन्वेस्ट करना होगा क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह भारत कर रहा है, इस पर टाइम दे रहा है, और खास तौर पर कोई बड़ा प्लेयर, कोई मायनाज प्लेयर, उसको हमें इस टीम के साथ लगाना होगा ताकि इनको इसी एज से ग्रूम किया जा सके, इनके जो मसाइल हैं बैटिंग के या बॉलिंग के वो दूर किए जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।